Hi guys. Hello. Hi, good evening. Hi. Hi. Finally. Yeah, hi. Yeah. Finally, Right. yeah. And welcome to my page. And I'm really glad that you joined us today. Thank you so much. It's our pleasure to be Yeah, there. yeah, thank you. And you're getting my voice? You're audible? Yeah, You're getting my voice? you guys can hear your Yeah, yeah. voice. Yeah. So, Dr. Maya, tell me about yourself now first, because guys want to, like, people want to know about yourself. Okay. I am Dr. Maya Rathore. I am an obstetric and gynecologist. I did a research in IVF. I'm here in Sydney right now doing my IVF in research in test tube babies and all. And also I did some bodybuilding competitions in Mumbai. I won Maharashtra Shri Mumbai Shri second place last year, and now I got here to come into an international IFBB when I'm getting trained for my IFBB, and I'm competing here representing India this year for my figure category, Very good. and that's all I'm doing right now here. So Okay. yes, to gain the knowledge, also I did my 1 year course of Australian Fitness Academy here, where I could actually go with all the do's and don'ts of the exercise and all that, because being a doctor I had a complete different profession to start with in a bodybuilding. Yes, So yes. when I was in India back, there were a lot of myths, lot of things going on which I was not able to clear it off, because in India for bodybuilding for men and women is totally different. And Yeah. there I really had a lack of knowledge of what I'm doing. Why am I doing? I had a lot of questions which were unanswered. So when I came Okay. here, I thought of giving a time, and did a course of 1 year of my this fitness, where I could get a lot of knowledge how to get into bodybuilding, how female bodybuilding differs from male bodybuilding. That was my main aim to study it. Yeah, because Yes. in India, like we'll speak in Hindi because people are Indian now, so they want to know, like, Oh yeah, I am yeah. really So well, sorry. yeah. So are you comfortable in Hindi, right? Yeah, yeah. Yeah, yeah, हाँ मैं yeah. comfortable हूँ. Okay, हाँ बोलिए. okay, okay. Yeah. So let's go ahead with question and answer. But this, like, अभी जो हाँ. हमने आज जो session रखा है, it's only for female bodybuilder. We want to send an Yes. inspirational message to them so that they Yeah. can हाँ understand कि जी. bodybuilding होती कैसे है. Because they हाँ don't जी. have any idea about bodybuilding. How to do exercises and nutrition and basic supplements also. तो Right. आज हम इस पे बात करेंगे. So my first question is like tell us about your fitness and bodybuilding journey ताकि लोगों को पता अच्छा. चले कि bodybuilding और fitness में क्या difference है and how you manage also. Tell me. अच्छा, मेरा सबसे पहले तो ये है कि मेरे जो प्रोफेशन था एज अ डॉक्टर, वो काफी हेक्टिक था. तो एंड Okay. ऑल्सो आई एम मैरिड एंड आई हैव, मुझे दो बच्चे भी है. सो जब Okay. मैंने सोचा था कि मैं इसमें जाऊंगी, तो जितने भी मेरे रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स एंड जितने भी मुझे जानते थे, इन्होंने यही सबसे Okay. पहले सवाल किया कि क्यों, आपको क्यों जाना है. Okay. एंड ये बेसिक क्वेश्चन होता है जब आप मैरिड हो जाते हैं एंड यू हैव अ फैमिली, और आपका एक अलग प्रोफेशन होता है. जैसे कोई लड़की आईटी में होगी, कोई लड़की डांसर होगी, कोई अलग प्रोफेशन में होगी, और देन वो Yeah. डिसाइड कर रहे कि अभी हमको फिटनेस में जाना है. तो ये Okay. क्वेश्चनिंग तो बहुत कॉमन होती है, क्योंकि मेल जेंडर्स को क्वेश्चनिंग नहीं किया जाता है जब इट कम्स टू चॉइस. एंड मुझे भी Okay. हुआ था ये, क्योंकि सब लोगों ने मुझे कहा था कि आप क्यों जाना चाहते हो, बिकॉज यू आर अ सर्जन. बट देन आई डिसाइडेड कि नहीं, हेल्थ इज वेल्थ.
एंड आई नीड टू Yes. टेक, क्योंकि जब मेरी सेकेंड डिलीवरी हुई थी उसके बाद आई वॉज 78 kg एंड Okay. मेरा वजन काफी ज्यादा बढ़ गया था, एंड देन आई डिसाइडेड टू गेट इन टू फिट बैक, and that was my first journey where I started. And from there, मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे वो मुझे मोटिवेट करते थे, दे सपोर्टेड मी, एंड उस तरह से मेरी इस तरफ जर्नी गई। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो बॉडी बिल्डिंग में ऑलरेडी थे, लाइक श्रीकांत, Okay. विलास। इन लोगों से मिली तब मुझे पता चला कि, बट उन्होंने मुझे ये भी सीन बैक बताया था कि उस टाइम पे फीमेल्स को ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, तो अगर आप जाना चाहते हो तो आपको बहुत लिमिटेड नॉलेज के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। Okay. एंड दैट इज हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी, और आज मैं यहाँ तक आई हूँ इस जर्नी में। सो ट्राइंग टू Okay. मैनेज Okay. बोथ द थिंग्स। यस, ये भी बताऊंगी, जो भी मुझे देख के कल कोई एक बंदी भी अगर मोटिवेट होती है कि चलो हम कर Yes. सकते हैं, मैं ये बताऊंगी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बट नामुमकिन नहीं है। बिकॉज दो Okay. बच्चे, Good. प्रोफेशन लेके आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, लाइक सच बताऊं तो एक रोबोट जैसे काम करना है। आपको ये टाइम पे Okay. ये खाना है, ये टाइम पे बच्चे संभालना है, ये टाइम पे करियर देखना है, ये टाइम पे अपना सब कुछ करना है। सो इट इज, ये डिफिकल्ट है, बट अगर आप ठान लो ये नामुमकिन नहीं है। सो इसमें आप Okay. नेगेटिव थॉट्स नहीं लेना कि यार बहुत ज्यादा नेगेटिव, ये बहुत ज्यादा टफ है। नो, इट इज नॉट टफ। अगर आप जाना चाहोगे आप कर लोगे। Okay. But it is difficult. But I think say because मैंने आपकी physics देखी है, it's amazing. वो दिखता है थैंक यू hard सो work मच। like yeah really. So थैंक यू now सो मच। Naveen ji, your second question. Yeah, so it's a story is kind of inspirational and motivation for many women. I hope कि जितने भी फीमेल एथलीट या जो भी है, जितने भी फीमेल देख रहे हैं, ये जो Sorry, I need to interrupt. I'm not getting able to hear your voice clearly. There's a lot of disturbance from your side. okay. Now I'm audible. All done. Yeah. Okay. Okay. So my second question is like we all know that you are a doctor. Okay. Apart being a doctor and a bodybuilder, a physique model and everything, and a mother also that I get to know now. How do you Okay. manage to take up time? मतलब आप कैसे निकालते हैं टाइम, कैसे करते हैं इतना ज्यादा डिसिप्लिन, ये क्या है? कुछ अब थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में ताकि ये बाकी लोग भी थोड़ा Uh, सा yes. टाइम निकालना मेरे लिए हमेशा से मुश्किल रहा है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि मैं ऐसे फैंसी लाइफ में बोलूं कि बहुत इजी है और बहुत ज्यादा है। यस, 365 days आई हैव टू वर्क। मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ टू गेट माई Oh, कार्डियो सेशन डन, ताकि 6 बजे मेरे बच्चों की स्कूलिंग शुरू होती है। आई हैव टू प्रिपेयर टिफिन। एक नॉर्मल इंडियन लड़की की तरह मुझे भी अपने बच्चों का खाना खुद ही बनाना पड़ता है। सो आई हैव टू कम होम बाय 6। They come to know that I'm a doctor and they're like, seriously, you're here? यही उनके रिएक्शन होते हैं कि सीरियसली यू आर हियर। बिकॉज जो मेरा फील्ड है,
OBGY, ये एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट है वे जो 24/7 आपको ऑन बोर्ड रहना पड़ता है. So yes, it is little bit tougher on my side. एक कमेंट आया आपके लिए मिस्चीवियस गर्ल से. शी इज सेइंग शी इज अ सुपर वुमन. वाओ. Thank you. She knows me. She is in Sydney only. She is a very cute girl by heart and by her nature Okay. also, and she knows me. She has seen me round the clock running for all the things. So she, yes. Thank you so So, much. I would like Mr. Prashant Mistry to take another question. Yeah. So, Dr. Maya, like how you train and what your nutrition do you follow actually? Or in like in bodybuilding. बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन किया क्योंकि मुझे वीक में 4 या 5 बार ऐसे आ ही जाते हैं कि आप क्या खाते हैं. Ah. और मुझे ना दूसरा क्वेश्चन बहुत ज्यादा नॉर्मली आता है लोगों से, मुझे टिप्स मिलेंगे एब्स के लिए. लाइक हाउ कैन आई डू. ये Yes. एज अ ट्रेनर आप लोगों को भी आते होंगे बहुत सारे लोग Right. एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम आप एप्स के लिए क्या कर सकते हैं और हम क्या खाते हैं. मुझे ऐसे लगता है कि मेरे एक कैसे कोई अपने आप बना लेगा और मेरे एक मैसेज से कोई कैसे अपने आप बना लेगा, एंड आई रियली डोंट अंडरस्टैंड. यस, बट Right. मेरा न्यूट्रिशन ऐसा होता है कि 6 मंथ्स हम गेनिंग पे जाते हैं जहाँ पे हमारा कार्ब लोडिंग बहुत ज्यादा होता है, एंड Yes. हमारा जो प्रोटीन है दैट इज हमारे वेट से 2 to 3 grams पर केजी वेट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है. Okay. एंड देन जब शेडिंग होता है तो हम कार्ब्स को, हाँ, अब जब मैं इंडिया में थी तो मेरे कार्ब लोडिंग्स बहुत ही शफलिंग थे. जो भी मुझे ट्रेन करते थे, जैसे आई गॉट ट्रेन बाय वेरी गुड हैंड्स, विपिन पीटर सर, श्याम राहटे सर, Okay. मनोज Sham Rate. मनोज Patil. Manoj sir, yeah, Okay. Kisan Dulam, Sai. These are all a group who really Okay. helped me to stand on the stage because I had zero knowledge. मुझे जीरो Okay. नॉलेज था बॉडी बिल्डिंग. मेरे को बस इतना Okay. था कि मैं रोज जिम करती हूँ, मुझे इतना ही पता था. मैं क्यों करती हूँ ये मुझे नहीं पता था. ऑल ऑफ अ सडन मेरे पे बॉम्ब था कि मुझे कंपटीशन खेलनी है. एंड Okay. या तो मुझे कार्ब लोडिंग का नहीं, वहां पे टोटली अलग था. लेकिन जब मैं यहाँ पे Okay. आई तो यहाँ पे कार्ब लोडिंग कैसा होता है कि आपका कार्ब लोडिंग ना 10-10, 20-20 ग्राम से कम किया जाता है. सो आपके मसल लॉस को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है. व्हाट दे डू इज आपके मसल्स को जो भी आपने गेनिंग में साइज ली है, दे ट्राई कि वो मसल साइज आप एंड तक लेके जाओ बिना उसको, जितना मिनिमम आप लॉस कर सकते हो. जैसे आपको पता है कि जैसे ही हम शेडिंग पे जाते हैं तो फैट, हमारा मसल लॉस भी होता है. बट यहाँ Right. पे Right. फॉर कि बॉडी इतनी एडजस्ट हो जाए कि आपका फैट लॉस शुरू रहे बट आपका जो मसल साइज आपने गेन किया है वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज ना हो. तो यहाँ के हिसाब से कार्ब लोडिंग हर वीक में मेरे डाइट में 10-10 ग्राम कम किया जाता है. तो वेर माई बॉडी Okay. एडजस्ट भी हो रही है और मेरे मसल लॉस भी नहीं हो रहे हैं. सो दिस इज व्हाट. एंड अभी फिलहाल मैं बहुत ही लो कार्ब डाइट पे हूँ, मैं शायद से मार्च एंड तक लो डाइट पे रहूंगी. हाँ, Okay. सप्लीमेंट्स. नाउ अ वेरी बिग क्वेश्चन अबाउट सप्लीमेंट्स. मैं चाहूंगी सब लोग सुने, स्पेशली लड़कियां, बिकॉज बीइंग अ डॉक्टर ऑफ अ गायनेकोलॉजिस्ट फील्ड, मुझे Okay. बहुत सारी लड़कियों के मैसेजेस आते हैं regarding their cycles, regarding their steroids, and regarding their weight gain, weight loss. Yes. अब क्या Yes. होता है, yes, अब क्या होता है, जैसे मैंने बताया था, हमारी इंडिया में, बैक इन इंडिया, स्टेरॉइड का यूज फॉर बॉयज इज डिफरेंट एंड फॉर गर्ल्स इज डिफरेंट. लैक ऑफ नॉलेज की वजह से बहुत कम ट्रेनर्स ऐसे होते हैं जिनको कोई नॉलेज नहीं होता है, एंड वो बहुत बड़ी बड़ी साइकिल्स लड़कियों को दे देते हैं. उसकी Right. वजह से Right. जो Right. उनके हार्मोन इम्बैलेंस है वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है. अब Right. क्या होता है, एक कुछ महीनों के लिए वो कंपटीशन तो खेल लेते हैं, साइकिल्स भी ठीक से बॉडी को एडजस्ट हो जाती है, बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो उनकी फर्टिलिटी पे होते हैं, दैट इज वेरी इम्पैक्टफुल. क्योंकि आप फर्टिलिटी को रिवर्स बैक नहीं कर सकते हो. कर सकते. Right. तो जब कोई लड़की जो भी फिटनेस में जाना चाहेगी, मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि मेल बॉडी इज टोटली डिफरेंट, और जो भी स्टेरॉइड्स बने गए हैं दैट इज फॉर मेल बॉडी.
आज तक Okay. कोई भी स्टेरॉइड इसलिए नहीं बना गया है ताकि वो फीमेल बॉडी पे एक्ट कर सके। हम उसको यूज करके बनाते हैं, वी ट्राई टू Okay. यूज इट फॉर द मसल्स। तो ये सबसे बड़ी बात है जब हमको कहा जाता है कि ये स्टेरॉइड्स लड़कियों के लिए है। देयर इज नथिंग, कोई लड़का लड़की नहीं है, सारे स्टेरॉइड्स बॉडी में जाके टेस्टोस्टेरोन ही बनने हैं और सारे जाके मसल ही बनाने हैं। अब Right. प्रॉब्लम ये Right. होती है अब प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे में जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होता है, ये अगर कम कर दो या आप 3-3 या 6-6 महीने के लिए साइकिल लो, जैसे नॉर्मली इंडिया में कहा जाता है, उसकी वजह से ये इसके वजह से जो नॉर्मल हार्मोन्स है फीमेल्स के, वो शट डाउन हो जाते हैं। अब शट डाउन होने की वजह से आप में सारे मेल फीचर आने शुरू हो जाते हैं, और जब आप स्टेरॉइड्स बंद कर देते हो, आपका ओरिजिनल हार्मोन्स भी बंद हो जाता है, एंड देन आपकी बॉडी एक मेल पार्ट में चेंज होना शुरू हो जाती है। सो व्हेनेवर कोई भी लड़की अगर एक साइकिल पे जाने की सोच रही है, एक वेरी गुड गाइडेंस, जो नॉलेजेबल पर्सन है आप उसी से गाइड लो, अपने हॉर्मोन्स को चेक करो, इवेल्युएट करो, और उसके बाद ही आई विल नॉट प्रमोट यू, बट देन अगर ले रहे हो, बिकॉज मैं सबको रोक नहीं सकती, Right. मैं भले ही अभी यहाँ बैठ के सबको बोल दूं कि लो मत बिकॉज ये बहुत रिस्की है, बट मैं Yes. रोक नहीं सकती। बट मैं इतना तो एडवाइस कर सकती हूँ कि एटलीस्ट जब आप ले रहे हो, टेक इट फ्रॉम अ सेफर हैंड और लिमिटेड लो, और उसको इवेल्युएट करते रहो। इसमें कोई हार्म नहीं है, आप एटलीस्ट चेक करते रहो कि जो चीजें आप ले रहे हो वो आपकी बॉडी में सही तरह से एक्ट कर रही है, नहीं कर रही है। Right. बिकॉज Right. Right. रिसेंटली आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम अ गर्ल इन इंडिया सेइंग कि मैडम मेरी पूरी बॉडी स्वेल हो गई है, मैं क्या करूँ? एंड आई स्टार्टेड विद दिस स्टेरॉइड। मैंने उनको एडवाइस किया कि आप सबसे पहले ये बंद करो, बिकॉज क्या होता है ना, जिसके पास नॉलेज होता है वो तो ज्ञान बांटता ही है, लेकिन जिसके पास नहीं होता है, वो जब वो ज्ञान बांटना शुरू कर देता है ना, तब दिक्कत आ जाती खतरनाक हो Right. जाता है। यस, बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो इसलिए So जब भी मैं यहाँ एक इंटरप्ट करूंगा. लाइक आई हैव वन क्वेश्चन. लाइक अभी बेसिकली इंडिया में, स्पेशली इन इंडिया, you know, one hormones, one substance is that's called Anavar, right? यस जो फीमेल काफी यूज कर रही है, मैक्सिमम आप देखो हर जगह, इवन इन मुंबई ऑल्सो। आई यस डोंट नो कहाँ से ले रहे, क्या ले रहे, बिकॉज काफी इवन इन मुंबई ऑल्सो काफी फेक ब्रांड्स है जहां से ये मिल यस रहा है। लेकिन उनके जो ट्रेनर्स है, दे आर सेइंग दिस इज फीमेल हार्मोन, इट्स सेफ टू योर लीवर। दे डोंट नो अबाउट फर्स्ट पास, ये सब चीजें उन्हें पता नहीं है, लेकिन फिर भी वो दे रहे, और काफी एडवर्स इफेक्ट इसके उन लोग झेल भी रहे, आई नो दैट। लेकिन इसके बारे में आप क्या बोलोगे? लाइक क्या मतलब उनको एक मैसेज देना है कि ये सारे जो हार्मोन्स है, लाइक बेसिकली एनओआर के बारे में, क्योंकि यहाँ एनओआर ऐसे बिक रहा है जैसे कि कैसे मेल बॉडी बिल्डर टेस्टोस्टेरोन और डायनाबॉल ये सब चीजें लेते हैं, वैसे वो बिक रहा है इवन इन दिल्ली ऑल्सो। ये सिर्फ साइकिल पे चला रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एनावा का साइकिल चला रहे हैं, उसके साथ और एनओआर ना कुछ। तो व्हाट यू हैव टू से रिगार्डिंग एनावार, एंड क्या पीसीटी करना चाहिए, इसके बाद क्या है क्या नहीं है, तो वी वांट नॉलेज ऑन दिस थिंग। यस एनावर, ऐसे जैसे मैंने पहले बताया था, कोई हार्मोन मेल या फीमेल के लिए स्टेरॉइड नहीं बनना। स्टेरॉइड राइट का एक ही काम है, कोई भी स्टेरॉइड आप लो। अब जैसे मान लो, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल वे से बताती हूँ। मैंने गाय का दूध लिया, मैंने गोट का दूध लिया, मैंने कैमल का दूध लिया, और मैंने उसमें चाय पत्ती डाली, बननी तो चाय है। अब मैं कुछ भी डाल दूं तो मैं ये नहीं बोल सकती आप कॉफी बनी। अगर मैं चाय पत्ती डाल देती हूँ किसी में, तो बननी तो चाय ही। अब जैसे आप कोई भी हॉर्मोन्स लो, आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ही बूस्ट होना है। तो अब टेस्टोस्टेरोन से अगर मैं एनावर ले रही हूँ और मेरी बॉडी में मैं टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर रही हूँ, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ कि ये फीमेल हार्मोन है, ये फीमेल स्टेरॉइड है? ये फीमेल स्टेरॉइड नहीं है। सबसे पहले तो जितनी भी लड़कियां आज देख रही है, जितनी भी लड़कियां आई हुई है, या फिर जितने भी लड़के आए हुए हैं, जितने भी ट्रेनर्स इसको देखना चाहेंगे, प्लीज मेक श्योर कि ये मेल और फीमेल का जेंडर सबसे पहले दिमाग से हटा दो। सारे लोगों को पता है कि बॉडी बिल्डिंग में मसल्स बनने चाहिए, और मसल इज ग्रोन टेस्टोस्टेरोन, ठीक है? राइट आप
एक कंपनी ने एक स्टेरॉइड बनाया जो लीवर के लिए सेफ है, हम्म ठीक है, बट ये तो नहीं कहा कि किडनी के लिए सेफ है, ये तो नहीं कहा कि हम्म बोन्स के लिए सेफ है, ये तो नहीं कहा कि हार्ट के लिए सेफ है। अब राइट लोग इसी का यूटिलाइजेशन लेते हैं कि दिस इज सेफ इन दिस इन लीवर, तो आप उसको पुश करते रहो। क्यों? मेल्स में लीवर नहीं है, राइट मेल्स को कोई लीवर नहीं है, इट इज बिल्कुल। देयर। बट द प्रॉब्लम इज हम सेफ गेम खेलते हैं क्योंकि जो क्लाइंट को हम पकड़ के रखना चाहते हैं उसके लीवर को हमने बचा दिया, ये हमारे दिमाग में होता है। भाई अब तो राइट कितना भी ले ले, तेरा लीवर सेफ है क्योंकि कंपनी ने मुझे बोल रखा है लीवर सेफ। यस अब आपकी ओवरी बिगड़ रही है, कोई लेना देना नहीं, आपका यूट्रस खराब हो रहा है, कोई लेना देना नहीं है, आपके हार्मोनल साइकिल्स खराब हो रहे हैं, खराब हमें हो कोई लेना देना नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी ने बोला है लीवर सेफ है। तो गर्ल्स, व्हेन यू थिंक अबाउट टेकिंग अनदर, सबसे पहले ये सोच लो कि अगर आप अपना लीवर बचा रहे हो तो आप अपनी फर्टिलिटी को नहीं बचा पा रहे हो वहां पे। एंड आई हम्म गेस for female, the main major issue has to be fertility, her future reproductive cycle. सो वहां पे आपकी साइकिल्स डिस्टर्ब होगी, वहां पे आपको इश्यूज होंगे। सो आई थिंक जब कोई अनावर लेता है तो ये ना सोचे कि वो अपनी लीवर को बचा रहा है, सबसे पहले ये सोचे कि वो अपनी फर्टिलिटी, फ्यूचर फर्टिलिटी, क्योंकि देखो देखो जो बॉडी बिल्डिंग में आता है, जो भी बिकनी मॉडल्स बनते हैं, दे आर ऑल यंग गर्ल्स। अब मैं 50 साल की यस लेडीज एक्सपेक्ट नहीं करूंगी, इन इंडिया में एक्सपेक्ट नहीं करूंगी, लेकिन ऑस्ट्रेलियन की 60-70 ईयर्स की लड़कियां, लेडीज आती है बॉडी बिल्डिंग करने के लिए। फॉर यू वी हैव अ यंग क्राउड। So ये यस लड़कियां मेजर पॉपुलेशंस आर अनमैरिड, मेजर पॉपुलेशंस आर येट टू हैव बेबीज। सो सबसे पहले गिव अ थॉट कि आप जब किसी से कुछ ले रहे हो तो आपकी फर्टिलिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो कहीं पे। सो टेक केयर ऑफ इट। एज आई मैंने पहले भी बताया कि मेरे ज्ञान से कोई रोकने नहीं वाला है या कुछ रुकने नहीं हम्म वाला है, बट हाँ वाला जो है भी आप कर रहे हो सोच समझ के समझदारी से करो। टेक इट इन फॉर सेफर हैंड्स कि आपको जो भी गाइड कर रहा है उसके पास उतना नॉलेज है, राइट? क्योंकि जिस बंदे से आप या जिस भी बंदी से आप ले रहे हो उसको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जैसे लाइक आज आई एम टॉकिंग टू यू, यू हैव अ लेवल ऑफ नॉलेज। तो जब मैं आपसे राइट बात कर रही हूँ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, और मुझे पता है कि मैं जिस हम्म बंदे से बात कर रही हूँ उसको समझ भी आ रही है। आई हैव सीन राइट सो मेनी ट्रेनर्स, they those are out of shape, they have no knowledge, they go, हम्म they smoke, they drink, and then they come on the floor and then they give knowledge, अपने फिटनेस के बारे में नॉलेज देते हैं, राइट राइट? जैसे मैं काफी पोस्ट देखती हूँ, हमारे यहाँ पे बॉडी बिल्डर्स इंडिया के जो जिम करते हुए पोस्ट करते हैं और शाम के टाइम पे स्मोक करते हुए पोस्ट करते हैं, अल्कोहल लेते हुए पोस्ट करते हैं, ओके पार्टी टू हाँ पार्टी टू संडे वाइब्स। एंड फिर आप कैसे प्रमोट कर रहे हो? ऐसे बंदे से आप क्या फिटनेस एक्सपेक्ट करते हो? सो जो भी राइट लड़की सोच रही है साइकिल लेना, नावर लेना, प्लीज टेक इट फ्रॉम अ सेफर हैंड, जिसको कोई नॉलेज है जो आपको बता सकता है कि ये सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। एंड सेकेंड थिंग, पीसीटी यस गर्ल्स, पीसीटी इज फॉर बॉयज बिकॉज बॉयज हैव एस्ट्रोजन रिलीज, जब उनका एस्ट्रोजन राइट रिसेप्टर से जुड़ जाता है। फॉर फीमेल पीसीटी इज नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि ऑलरेडी उनकी या बॉडी में एस्ट्रोजन होता है। सो समथिंग हम्म न्यू डजंट कम, कुछ नया नहीं है उनकी बॉडी में। सो वुमेन्स डोंट रिक्वायर। यस। राइट 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 सो ये अच्छा हुआ आपने जो बताया फीमेल को, लाइक बहुत सारे फीमेल्स जो ये जो ड्रग्स, ये काफी खेल चल रहा था, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि आपने जो अभी आइडियाज दिए, जो आपने बताया हुआ है, तो आई थिंक जितने मैक्सिमम जो अभी ज्वाइन जिन्होंने किया हुआ है, दे विल थिंक ओवर इट, कि सोचेंगे यस क्या प्लीज है करो, क्या नहीं, या बिकॉज जरूरी है। आपको आप सी, आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, आप ड्रग्स लो आप नहीं लो कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप हम्म डाइट को मेंटेन नहीं करते। सेवेंटी राइट टू यूर एटी राइट परसेंट आपकी डाइट के ऊपर है। आप अगर हम्म अच्छा डाइट मेंटेन कर रहे हो, आप फैट बर्नर्स ले रहे हो, यू विल ब्रेक द स्टेज। नाउ या आई टेल यू, मुझे इतने सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट ऑल साइकिल्स यू टेक, व्हाट ऑल आई टेक। मुझे आज 10 साल हो गए, आई एम डूइंग जिमिंग। माई ओके मसल इज दैट कंडीशन, माई मसल इज दैट ओके कंडीशन कि मैं इतने सालों से वेट्स ले रही हूँ, मैं उतने सालों से स्क्वाट्स लगा रही हूँ, मैं इतने सालों से लंजेस कर रही हूँ। तो व्हेन यू लुक ओके एट मी, माई बॉडी इज दैट कंडीशन। अब या प्रॉब्लम क्या होता है न्यू जनरेशन का? क्विक रिजल्ट। भाई मैंने जिम चालू कर दिया, 3 महीने हो गए, मेरी बॉडी में चेंजेस नहीं दिख रहे, मुझे स्टेरॉइड पे जाना है। लेना है लेना है
बट ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप डाइट तो फॉलो करो, उसके बाद आपकी बॉडी के चेंजेस देखो। जितना आप स्टेरॉइड लेके नहीं चेंजेस ला सकते, उतना कई आसानी से आप अपना डाइट फॉलो करोगे, तो यू विल गेट अ ह्यूज डिफरेंस। तो जो भी लड़कियां Yes. हैं वो जिनके बच्चे होने हैं, दे आर वेरी यंग, 23-24 ईयर्स, डोंट प्ले विथ योर फ्यूचर रिप्रोडक्टिव साइकिल। दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप एक तरफ से वो कॉम्प्रोमाइज कर देते हो और फिर बाद में इनफर्टिलिटी सेंटर्स पे जा जाके आपको आईवीएफ करवाना है, और फिर ये कहना है कि हमारी साइकिल्स रेगुलर नहीं है, हमें बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो कोई पॉइंट नहीं है ऐसा बिजनेस करके। Right, right, right. सो यस। So So next I would question, Naveen ji. yes, I would like to tell every viewer over here and whoever will see this video later on that see nothing is magic and there's no shortcut. She spent almost 10 years तब कहीं जाके इतनी अच्छी मसल मैच्योरिटी आई है, इतना अच्छा कंडीशनिंग है बॉडी में। तो यू शुड अंडरस्टैंड कि 10 मंथ्स या 1 ईयर में नहीं होने वाला। यू हैव टू गिव टाइम एंड देयर इज नो शॉर्टकट। प्लीज डोंट गो फॉर। So my next question to you is, ma'am, there are a lot of ladies over here, means in India, in the whole world, they are suffering from thyroid, PCOD, PCOS. So basically, they are unable to lose weight because of this, and many special population people are there. So they lose confidence in regards of this. So what is your like guidance or advice to them for those ladies? ओके, सी, सबसे पहले तो ह्यूमन बॉडी इज वेरी फ्लेक्सिबल। A very prime example I can give is Mary Kom has done 3 C sections, still she won so many medals. Yes. That itself हमको क्लियर कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं है। That's just one example. I have delivered 2 babies, and I think enough of, if you want to change, you will change. में ऐसा नहीं है कि सर्जरी हो गई तो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, आपको थायराइड हो गया तो आप लाइफ लॉन्ग एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आपको पीसीडी हो गया। इनफैक्ट ये सारी चीजें एक्सरसाइज से कम होती है बॉडी में। तो अगर आपका कोई मेजर ऑपरेशन हुआ है, तो आप फिटनेस में जाके उस मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ताकि आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। आपको अगर पीसीओडी है, आप वेट कम करोगे, आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस क्योर हो जाएंगे, आपको कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। आप थायराइड के पेशेंट हो, आप अगर अपना वेट रेगुलाइज करते हो, आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हो, आपके ब्लड सर्कुलेशन अच्छे रखते हो, आपके थायराइड के डोजेस कम हो जाते हैं। तो एक्चुअल में जो डिजीजेस होते हैं उनके लिए फिटनेस बहुत ज्यादा मैटर करना चाहिए। इट्स एन आइडियली, अगर आप डायबिटिक हो, आप रोज एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका इंसुलिन शूट कर रहे हो, आपके रिसेप्टर्स अच्छे से फ्लो कर रहे हैं, आपका शुगर लेवल वैसे भी नॉर्मल रहना है। स्पेशली पीसीओडी पेशेंट्स, इंडिया में जब मैं थी, आई हैव सीन मेनी पेशेंट्स जहाँ पे मतलब मैंने दोनों जगह काम किया। मैंने मेट्रो सिटीज में भी काम किए, और मेरे एक्सपोजर्स के लिए, मैं आईवीएफ के एक्सपोजर्स के लिए मैं बहुत पेरी गांव के रीजन्स में भी मैंने काम किए हुए हैं। तो वहां पे Good. ऐसा होता था कि पीसीओडी है तो तुरंत आपको दवाइयां शुरू कर देते हैं 5-5, 6-6, 7-7 महीने के लिए, और बहुत सारी लड़कियों को करते भी हैं, आज भी करते हैं। बट द ओनली हिडन सीक्रेट ऑफ पीसीओडी है कि अगर आप अपना वेट कम रखते हो तो आपके हार्मोन्स कम रिलीज होते हैं और आप हार्मोनल इम्बैलेंसेस से बाहर निकलते हो। सो सबसे पहले जो भी पीसीओडी है, आई विल रिक्वेस्ट देम एज अ गायनेकोलॉजिस्ट टुडे कि पहले आप अपने वेट को कम करो, उसके बाद आप कोई भी हार्मोनल मेडिसिन पे जाओ, जो इंडिया मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स 3-3, 6-6 महीने के लिए देते हैं। स्टॉप दोज राइट अवे एंड मेंटेन योर diet, maintain your fitness, and drop your weight, so your PCOD will clear naturally. So जो भी हेल्थ इश्यूज है, इनको सबसे पहले जिम ज्वाइन करना चाहिए, Okay. ना कि उसको लेके बैठना चाहिए, बिकॉज फिटनेस एक ऐसी चीज है जो उनको इन सब चीजों से लॉन्ग टर्म के लिए बाहर निकाल सकती है। Okay. कुछ क्वेश्चंस है, विल टेक दैट क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, जैसे फॉर एक क्वीन फिटनेस करके है, शी इज अ बॉडी बिल्डर ओनली। ओके, शी पार्टिसिपेट इन ओलंपिया आल्सो, एमेच्योर ओलंपिया, एंड शी गॉट अ 5th प्लेस, और काफी अच्छी बॉडी है। हर नेम इज विनीता। तो उन्होंने लिखा है, क्या बॉडी बिल्डिंग में फीमेल को पार्टिसिपेट करने के लिए स्टेरॉइड्स लेना जरूरी है? नॉट अ क्वेश्चन।
No frankly action. speaking, Okay. yes, frankly speaking, when मैंने जब किया था, I was totally on fat burners because मुझे थोड़ा Okay. हार्ट का इशू हुआ था because of my Okay. previous histories of my weight gain and all that. तो Okay. मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी और मैंने नहीं लिया एंड I won the competition. सो Okay. दैट इज Good. उन्होंने बराबर से कहा था 1 या 2 साल में बॉडी नहीं बनती, आपको कंसिस्टेंटली रोज स्क्वाट करना पड़ता है, 365 डेज वेट लेने पड़ता है, यू हैव टू बी अंडर बार, यू हैव टू बी टेकिंग द व्हाट वी से डंबल्स, यू नो, यू नीड टू गो Okay. पेन टू गेट योर मसल्स, you know. Okay. So there is no need to take steroids and all. Okay. ना Only nutrition and exercise and proper rest. It's like जैसे science बोलता है, Yeah. यस right? अभी सेकंड क्वेश्चन है आई थिंक डॉक्टर अमित का. तो या उनका क्वेश्चन है लाइक इज वर्किंग आउट इन द मॉर्निंग इज बेटर और इन द इवनिंग? या सी व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आप एम्प्टी स्टमक रहते हो, यू आर फास्टिंग. ओके. सो इस राइट. टाइम पे अगर आप कार्डियो करते हो तो दैट आपके ज्यादा एटीपीज बर्न होते हैं, दैट आपके कैलोरीज ज्यादा यूटिलाइज होते हैं. बट आपका पूरे दिन का आप मील ले लेते हो, कार्ब लोडिंग कर लेते हो, उसके बाद जब आप वर्कआउट के लिए जाते हो, देन यू हैव दैट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ओके. टू डू योर वर्कआउट. जैसे ओके. मान लो आप फर्स्ट मॉर्निंग में जैसे उठते हो तो आपका कार्ब लोडिंग नहीं होता, जैसे कोई 9 बजे सोता है, कोई 10 बजे सोता है, तो एट दैट टाइम्स व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, 7 या 8 घंटे की फास्टिंग हो जाती है. तो उसमें जब आप सुबह जाके वेट्स लेने की कोशिश करते हो तो यू आर लैक ऑफ एनर्जी और आप उसको राइट. प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी नहीं कर सकते हो. यू या स्टिक टू एब्सोल्युटली. द वेट फॉर मंथ्स एंड मंथ्स, आप वही वेट्स पे रहते हो. जब आप पूरे दिन का कार्ब लोडिंग कर लेते हो, आफ्टरनून में आपके पास सफिशिएंट एनर्जी होती है, उस टाइम पे आप वर्कआउट कर सकते हो, बिकॉज दैट्स द राइट टाइम यू कैन डू योर वर्कआउट. या. सो मॉर्निंग cardio is very Yes. good, and गुड. afternoon or evening workout is very good. ओके. आफ्टर कार्ब लोडिंग एंड प्रोटीन शेक जो भी हम लेते हैं Yes, लाइक. yes. One more question from Deepa. Please say about soya protein. Soya protein is good or bad? I don't know. You tell me. Okay. Yes, soya protein is good, but yeah, for female it is good. Okay, that's all. Because Okay. for male Okay. it contains estrogen, तो आपको गायनेकोमेस्ट्रिया को जो भी एस्ट्रोजन से सेंसिटिव होता है, अभी हर कोई तो सेंसिटिव नहीं होता है, लेकिन 10 में Right. से 3 या 4 लड़के ऐसे होते हैं जो एस्ट्रोजन सेंसिटिविटी से दे सफर. तो जैसे ही वो सोया लेना शुरू कर देते तो दे फील के ब्रेस्ट पे मुझे बहुत ज्यादा फैट फील हो रहा है. बट फॉर Okay. फीमेल एस्ट्रोजन ऑलरेडी बॉडी में है, आप नया कुछ हाँ. नहीं ले रहे हो, तो आप सोया हाँ. प्रोटीन ले सकते हो. ओके. दैट्स अ गुड. लेकिन लाइक एक क्वेश्चन है, जैसे एक डॉक्टर है फ्रॉम कोकिला बेन, आई नो हिम वेरी वेल. तो उन्होंने वन ऑफ माय फ्रेंड लाइक अभी उन्हें ब्रेस्ट कैंसर नहीं है, पहले था. सो उन्होंने बोला था कि यू डोंट हैव टू टेक सोया प्रोडक्ट बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर यू. सो आप मुझे रीजन बताओगे इसके पीछे क्या है जनरली? बिकॉज उन्होंने बोला था नहीं लेना है, इट्स नॉट गुड फॉर हर बिकॉज शी हैज ब्रेस्ट कैंसर. तो आपको ये अवॉइड करोगे, सो इट्स गुड फॉर यू. ओके, इन अ कैंसर पेशेंट, ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट में क्या होता है, BRCA रिसेप्टर होता है. यस. तो इसमें क्या होता है, जब आप सोया ले रहे हो तो यू आर स्टिमुलेटिंग योर एस्ट्रोजन इन बॉडी. ठीक है, राइट. आप एस्ट्रोजन रिलीज कर रहे हो तो एस्ट्रोजन क्या करेगा, आपके रिसेप्टर्स को, ब्रेस्ट के रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा. तो ओके. आपका जो कैंसर स्प्रेड होने का स्पीड है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है इफ यू टेक Okay. सोया इन दैट. Okay. But other than that, if you're not a cancer patient or you don't have history of cancer, especially Okay. breast cancer in your family, soya taking is safe for you. But if you Okay. have a family history of breast cancer or you are Okay. suffering from breast cancer, then you should avoid the soya proteins. Okay. So it's not good. I For do breast Not have good, I cancer think. patient. Yeah, one yeah, question I you have. can avoid. Uh, as you are in Australia and you have also been in India from last so many days, years, means maybe you might have gone over here only, and now you are in Australia. So you have seen the fitness industry in India and Australia also. So Yes. what difference do you see in Indian fitness industry and Australian fitness industry? I mean, uh, regarding everything in fitness, like what are the differences you? Yeah. Yes. When I was in India,
as I said, for female bodybuilding, the exposure was little less. You have a little competitors, you have little knowledge to share, Right. and for when I came here, यहाँ पे you have a lot of competitions. एक एक कैटेगरी में 150-200 लड़कियां होती है एंड यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, क्योंकि इसलिए यहाँ पे नॉलेज काफी ज्यादा दिया जाता है फीमेल। यहाँ पे ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि अगर फीमेल है मेल है तो लैक ऑफ नॉलेज नहीं है। सी डिस्क्रिमिनेशन सेंस लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि अपने यहाँ पे जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं सारे मेल ओरिएंटेड है मैक्सिममली। Right. We are promoting in India right now for the bodybuilding for females, and it is really promoting in a nice level. But when you ask me, the experience was when I was there, I had a couple of competitors. When I came here, I had more than 200 on a stage. जहाँ से हमको eligible होके then we have to cross the line and then get selected for those 10 girls on a figure category कि अब ये 10 लड़कियां इस साल के लिए खेलेंगी। क्योंकि I'll tell you what happens, जब IFBB अपनी 10 लड़कियों को प्रेजेंट करते हैं तो वो ऐसे प्रेजेंट करते हैं जिसको पूरी दुनिया देखने वाली होती है। So when you are on stage, they want people to be 100%. They don't want winners. They want those 10 girls who are perfect that entire world can cherish. So they have to maintain their level of IFBB. So when I came here, I already had 170 girls in figure category, which I had to compete with. And then we were being sorted out, and now we are there. A few girls who are going to play for IFBB this year. Okay. And yes, और एक बात थी, जब being a Indian, जब मैं यहाँ पे आई थी, I was the only Indian. When my judges, I met my judges. They said कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हम किसी ब्रांच के like कोई इंडियन को हम इस साल जज करने वाले हैं। Good. अभी तक ऑस्ट्रेलिया से इस कैटेगरी से इस स्टेज पे कोई इंडियन नहीं चढ़ी है। So for me, it is a very big pressure on my head because I will be representing entire India for this IFBB in Australia. क्योंकि जो मैं करती वो उनके लिए कल एक मिसाल हो जाएगी कि Indian girls are so strong to come and stand here. अभी तक ऐसा होता था कि सारे फॉरनर्स आते हैं स्टेज चढ़ते हैं, बट व्हेन दे नीड अ जज ऑफ इंडियन, दे विल नॉट जज मी, दे विल जज माय एंटायर इंडिया स्टैंडिंग बैक, because for them it is first time. Those 12 judges, when they will see an Asian first time, it will be a huge responsibility on my shoulder. That is why I have to maintain every single day of mine, because in back of my mind I have to मैं पहली बार ऑस्ट्रेलिया में कोई इंडियन स्टेज करने वाली है, तो जब मैं एक मिसाल कायम करूंगी तब यहाँ की जो ऑस्ट्रेलियन लड़कियां हैं उसमें से 4 लड़कियां आके स्टेज पे चढ़ने की कोशिश करेगी कि चलो हम भी अगले साल आ सकते हैं, अगर ये आ रही है तो कल हम भी आ सकते हैं। इसलिए ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड यस, एंड सीरियसली टेलिंग यू, जब मैं यहाँ पे आई थी, यहाँ के जजेस, यहाँ के कोचेस, दे हैव वार्म वेलकम। मुझे कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं फील हुआ कि बिकॉज आई एम इंडियन आई एम बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड ऑल्सो। दे हैव वार्म वेलकम मी सो नाइसली। वो मुझे हर हफ्ते ट्रेन करते हैं, हर हफ्ते वो ट्रैक करते हैं, whatever जो भी मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ वो उनको अप्रिशिएट करते हैं उसके लिए। एंड फॉर दैट आई रियली डोंट फील के there is a huge difference between what I got in India and in Australia. Okay. So as I am in my city. Okay. Yeah. So one more question is there from Shashank. So he's asking what are the negative effect of having low body fat for longer period of time? Yes, it does. Yes, you can't be, आप ज्यादा टाइम गेनिंग पे भी नहीं रह सकते और आप ज्यादा टाइम शेडिंग पे भी नहीं रह सकते हो, बिकॉज जब आप शेडिंग पे होते हो, लैक ऑफ न्यूट्रिशन लैक ऑफ कंसंट्रेशन, आपके ब्रेन में जो मिनरल्स जाने चाहिए वो कम होना शुरू हो जाते हैं। देयर इज लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ स्ट्रेंथ, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। तो आप मिनिमम 2 months या 1 month तक आप शेडिंग पे जा सकते हो, नॉट बियॉन्ड दैट। वंस यू आपका जो टारगेट है, जैसे इंडिया में
मैंने श्रेडिंग शुरू की थी 4 या 5 महीने पहले, ठीक है। Okay. तो मुझे ये वाला नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पता था। व्हेन आई केम टू ऑस्ट्रेलिया, आई डिड ऑस्ट्रेलियन फिटनेस एकेडमी का जब मैंने पूरा कोर्स पढ़ा, उसमें हमको बताया गया था कि आप 12 वीक से ज्यादा बॉडी को स्ट्रेस नहीं दे सकते, बिकॉज दैट्स अ इंसल्ट टू योर ब्रेन एंड दैट इज अ Okay. टॉर्चर टू योर बॉडी ऑफ गिविंग लैक Okay. ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे Okay. जब प्रिपरेशन होती है, दैट इज ओनली फॉर 12 वीक्स। Okay. Not more सो than आप that. किसी नो अगर आप यहाँ पे किसी Okay. कोच के पास चले भी जाएंगे और उसको बोलेंगे कि भाई मेरा ना 4 महीने में या 5 महीने में कंपटीशन है, आप मुझे प्रिपेयर कर दो, ही विल Yeah. आस्क यू टू कम 12 वीक्स बिफोर योर कंपटीशन, नॉट Oh, नॉट good. बिफोर दैट। यस, And सो this इट्स is ओनली फॉर इंडिया में तो this is the right execution of knowledge, and this is yes, for the proper knowledge and right execution of knowledge, right? and in India like सालों से चालू रहता है, करना है, you have to be in like calorie deficit for 6 months 7 months, पता नहीं, और बाद में या जाके भी स्टेज पे अगर आप देखोगे तो स्टेज पे फ्लैट ही बॉडी दिखती है, हार्डली कोई होगा लाइक फॉर जैसे कि मैम है, मैम की मैंने फिजिक देखी, रियली वंडरफुल, जब फुलनेस आप देखोगे तो काफी शार्प, मतलब गुड। यस या सो नेक्स्ट बिकॉज यहाँ क्वेश्चन पे ना नवीन। कार्ब लोडिंग बंद नहीं करते, दे डोंट डू कार्ब यस, लोडिंग या, because they need सो to maintain that fitness. right. So one more question is there from Abhi's, I think. I'm facing slight pain in my shoulder during push-up. Do I need rest or do I need to see a doctor? Yes. So I think See, ये when there question, is a yeah. pain, when there Hmm. is a pain, your body is saying that you need a rest. Yes. There is something wrong. Wrong. मैं रोज जाके पुशअप कर रही हूँ, मेरी बॉडी इज लाइक ऑल ओके, मुझे तभी दर्द Hmm. होगा जब अंदर कुछ प्रॉब्लम है। Hmm. दैट इज द वे ऑफ सेइंग माय बॉडी कि अब कुछ तो प्रॉब्लम है, एंड दैट इज द पेन रिसेप्टर। इसीलिए नेचर ने बनाया है ताकि आपको महसूस हो सके कि अंदर सिस्टम आप देख नहीं सकते, अंदर कुछ तकलीफ हो। So Right. if you're getting a pain during push-ups, go and show it to a doctor. Go and show it to an orthopedic surgeon, especially Right. because I know there are local doctors जो आपको पेन किलर्स लिख के दे देंगे, आप 4 दिन लोगे और फिर उसी चीज पे आप वापस आके रुक जाओगे। इसलिए गो एंड शो इट टू एन ऑर्थोपेडिक सर्जन जो आपको प्रॉपर इवेलुएट कर सके एंड देन दे कैन चेक यू आउट करें। Right. So Naveen ji, next question. Next question is yours, I guess. Mine already मैडम ने वो आंसर्स दे दिए अबाउट सप्लीमेंट्स एंड ऑल, बिकॉज सारे क्वेश्चंस आए थे, तो आई Okay. थिंक वन मोर यस, फॉर क्वेश्चन द इज सप्लीमेंट आई देयर। वुड रियली से देयर आर, मैंने जैसे विपिन पीटर सर से गाइडेंस लिया था, श्याम राठे सर, मनु सर, आई हैड अ वेरी यूज पीपल। I know ओके, meeting these people it's not in everyone's hand because they are very big राइट shot people, very big celebrities and very राइट knowledgeable people. But हम्म मैं उन लोगों को सच में ये कहना चाहूंगी कि ब्लाइंडली जो भी सप्लीमेंट्स है, ब्लाइंडली कोई भी चीज फॉलो मत करो until unless you are 100% sure of it. डोंट टेक एनीथिंग विच इज हार्मिंग योर बॉडी। भाई मैं तेजाब लेके ये नहीं बोल सकती कि मेरा चेहरा एकदम सूर्य जैसा निखर जाए, फेयर एंड लवली जैसे हाँ, निखर जाए, नहीं भाई। अगर मैं तेजाब ले रही हूँ तो मैं तेजाब ही ले रही हूँ, मैं कहा मैं खुद को झूठ नहीं बोल सकती। इसलिए आप ओके, जो भी नया कोई एंकू है जिसको बॉडी बनानी है, आई विल रिक्वेस्ट अगेन एंड अगेन कि भाई ऐसे लोगों के पास जाओ जिनके पास नॉलेज, Exactly. जो खुद नॉलेज, जो आपको नॉलेज दे सकते हैं। सिर्फ स्टेरॉइड देना तो हर गली में 4 लोग बैठे हैं जो आपको स्टेरॉइड दे देंगे, बस उसका लेके मतलब क्या है। जब हम राइट, सब्जियां भी खरीदते हैं तो हम टटोल टटोल के खरीदते हैं कि भाई सही वाली सब्जी हमारे घर जानी चाहिए। तो जब ये आपकी बॉडी, अब जब आप अपनी बॉडी को ही बनाने के लिए अगर गलत गलत गाइडेंस से जाओगे तो सही चीजें नहीं होगी आपके साथ। तो ये मैं रिक्वेस्ट करूंगी, यहाँ बैठ के भी मैं इंडिया में रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज जितने भी नॉलेजेबल लोग हैं आप उनके कांटेक्ट में आइए और उनसे नॉलेज लीजिए। बिकॉज रियली आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट ब्लफिंग ऑन दिस। मुझे इतने मैसेंजर्स और इंस्टाज मैसेजेस आते हैं कि मैडम ये मेरी ब्लड रिपोर्ट है, मुझे ये इशू हो गया है, मैं 3 महीने से ये ले रहा हूँ, अब मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, अब ये प्रॉब्लम एंड ब्ला 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 प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट क्यों कर रहे हो। अदर देन अगर आप सप्लीमेंट्स पे हजारों रुपए वेस्ट करना चाहते हो तो वहीं ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए देके कोई नॉलेजेबल बंदे को कंसल्ट कर लो, तो आप भी Exactly. सही फंड में रहोगे। Right. Yeah. एंड व्हाट अबाउट दिस फैंसी ड्रग्स जो मार्केट में आ चुके हैं, किसी का एक का क्वेश्चन है, लाइक जो ये फैंसी ड्रग्स आए लाइक पेप्टाइड्स, बहुत सारे पीजीसी 1295, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ड्रग्स है, तो ये लोग, आई डोंट नो, मुझे इसका कुछ पता नहीं, लेकिन लोग
जैसे मुझे सुनाई देता है कि हाँ सर मैंने ये लिया है, सर मैंने वो लिया है, तो उसका क्या है? दिस फैंसी लाइक ड्रग्स रियली वर्क? Fancy drugs No, it and doesn't work. there is one more And even if privilege it which works very harm. temporary. Even if What? it works very temporary. It doesn't टेम्पररी ना? work, and if it works very temporary. You know, मैं एक बंदे से इंडिया में मिली थी, उसने मुझे कहा था कि मैडम हम ना आपके शोल्डर को और ज्यादा बड़ा कर सकते हैं। आई सेड कैसे? ओके। उन्होंने कहा ये इंजेक्शन अगर आप अपने शोल्डर पे ले लोगे ना तो आपकी बॉडी हम्म। आपके शोल्डर बन जाएंगे। अब इस ओके। देखिए क्या है, मैंने इस टाइम ये पेप्टाइड है, ये एक एंजाइम है, ये डायरेक्ट शोल्डर्स हाँ। बढ़ा देता है, ये डायरेक्ट मसल ही ओके। बढ़ा देता है। ओके। वेरी गुड। ओके। मैंने कहा भाई के लिए आप एक काम करो, आप ये ओलंपिया भेज दो, क्योंकि ओलंपिया में हाँ। लोगों को बहुत जरूरत है। हाँ. राइट मैं राइट राइट राइट। नहीं, अच्छा, रियली रियली। there is a मैं question एक बात from बताना चाहूंगी, हर हर चीज लेने की जरूरत नहीं है। आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए, आपकी बॉडी को वर्कआउट चाहिए, आपकी बॉडी को डाइट चाहिए। भाई यहाँ पे राइट। क्या होता है, लोगों को बॉडी चाहिए लेकिन 150 का स्क्वाट्स किसी को नहीं मारना है, 140 रियली। की डेडलिफ्ट किसी को नहीं लेनी है, रोज सुबह 4 बजे उठ के 100 पुशअप्स मारने किसी को नहीं जाना है। ओके, माय डेली शेड्यूल में every alternate day I have to do push-ups, every alternate day I have to take chin-ups, every alternate day ओके। I have to do my glutes, ताकि मैं अपने मसल्स को कंटिन्यूसली टोन्ड अप रखूं। Now ओके, you are गुड ready गुड। for this, you are ready for this, you get figure like me. Simple. नो नो नो, नहीं It's a ऐसे very नहीं कोई simple करने thing. वाला है इंडिया में। इंडिया में हाँ. सब हाँ शॉर्टकट चाहिए। हाँ, that is what, अगर जिम। आपको या। चाहिए, you want a result, you go for your result. So you can't राइट। say shortcut. स्टेरॉइड्स, चलो मैं अगर मैं बोल भी दूं किसी बंदी को, मैं अगर झूठ भी बोल दूं कि आपकी स्टेरॉइड से बॉडी बन जाएगी, 3 महीने 4 महीने, लाइफ लॉन्ग तो वो लेगी नहीं, अफोर्ड भी नहीं कर पाएगी। और फिर 5वें महीने जब मैं वो बंद कर दूंगी, उसके पूरे मसल्स फ्लैट हो जाएंगे, फिर मैं उसकी बॉडी कहाँ से बनाऊंगी? सो एवरीथिंग इज टेम्परेरी। राइट राइट। Right. सो दैट इज व्हाई जब तक साबुन पे पानी है तब तक झाग है, साबुन के ऊपर से पानी निकाल दो सूख जाएगा। अभी मेरा तो सिंपल लॉजिक है, अब मेरे को ज्यादा राइट। ब्लफ करने की जरूरत है, मैं कोई बहुत ज्ञानी भी नहीं है। आप साबुन के ऊपर पानी डाल रहे हो तो झाग निकलेगा, जब तक आप पानी डाल रहे हो। आप एक बार उसको सुखा दो, आप वैसे ही बाकी वापस जैसे मैं थी वैसे ही। आज मैं वर्कआउट कर रही हूँ, मेरी बॉडी कंडीशन में, मैं 6 महीना वर्कआउट छोड़ दूं, मैं 6 महीना डाइट छोड़ दूं, आई विल बी अ नॉर्मल माया, मुझे कोई जानेगा भी नहीं। Yes. मैं आज मैं एक सर्जन हूँ, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी तो सही है कि मैं 1 लाख का स्टेरॉइड 1 महीने में या 1 साल में लगा ही सकती हूँ। अगर स्टेरॉइड से राइट। बॉडी बनती तो फिर मैं आज, चलो मैं मान लेती हूँ, मैं आज लोन ले लेती हूँ 40 लाख का, और मैं सारे स्टेरॉइड जितने भी मार्केट पे सारे लगा देती हूँ, तो क्या मैं ओलंपिया जीत जाऊंगी इंडिया की तरफ से? इम्पॉसिबल। No, 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 no. सिंपल, ये आंसर ही इसका राइट राइट। सिंपल है कि ऐसा नहीं होता है कि भाई कोई भी स्टेरॉइड लगा के आपकी बॉडी बन जाएगी, ऐसा नहीं होता है। Right. ओके ओके, और एक क्वेश्चन है फ्रॉम जेलीबिन। Yeah. I think she is talking about teenager. Yeah, many teenagers are stressed out because of PCOD these days. What is the main reason for this, and how to deal with it? Yes, PCOD in India is like corona cases in India. Seriously, Right. I get so many messages for PCOD. See, girls, PCOD is a very normal thing if you take it normal. सबसे पहले आप अपना डाइट मेंटेन करो, अपना वेट कम रखो, एंड हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, स्टॉप हैविंग जंक Right. फूड्स, एंड स्टॉप Good. स्ट्रेसिंग योर लाइफ, बिकॉज स्ट्रेस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर प्ले करता है इन पीसीओडी। ठीक है, there are two categories of people who lands up in PCOD, rather than that more than two, but then there's basic two are the one who are very young, stressed out with their diet, जो कॉलेज में जाती है, और जंक फूड्स, पिज्जा, बर्गर, this is the one category where you get PCOD cases, and second is the one who are always stressed in their life. So Okay. these stress and unhealthy lifestyle gives you PCOD. ठीक है, Right. एंड थर्ड Okay. थिंग, आधे PCOD के पेशेंट्स को हमारे डॉक्टर्स ही रिलीज कर देते हैं, बिकॉज दे गिव देम लॉट ऑफ हॉर्मोन्स। जैसी एक बंदी Okay. आती है कि मेरे साइकिल्स रेगुलर नहीं है, दे स्टार्ट देम विद द हॉर्मोन्स।
मैं आज इसके थ्रू कहना चाहूंगी कि जो भी लड़की 14, 15, 16 साल की है, जिसकी भी मॉम वरिड होती है कि हम्म मेरे जो भी लड़के होंगे जिनकी बहनें हैं घर पे, या जो भी है फ्रेंड्स हैं जो ये वरिड रहते हैं कि मेरे मेरे फीमेल कलीग और सो कॉल्ड के मेंसेस रेगुलर नहीं आते हैं, जब तक शी इज 16 और 18 ईयर्स, डोंट रेगुलाइज हर साइकिल। ओके। क्योंकि मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि 16 साल की लड़की की साइकिल रेगुलराइज करके आप क्या प्रेगनेंसी पाना चाहते हो क्या? मेरा सबसे पहले क्वेश्चन का यही क्वेश्चन होता है। मेरे पास यू आर इतनी राइट। सारी लड़की को लेके आती है कि मेरी बच्ची का ना साइकिल रेगुलर नहीं है, 14 साल की है, पहले 13 या 12 साल में रेगुलर आ रहे थे, अब साइकिल रेगुलर नहीं है, तो मैं क्या करूँ? एंड दे कम विथ यूज ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पिल्स जो डॉक्टर्स दे देते हैं 6 6 महीने के लिए। दे टेक दैट, उनके बोन्स फ्यूज हो जाते हैं, उनकी हाइट शॉर्ट रह हम्म जाती है, एंड राइट। because they take lot of hormones in initial days, और उसके बाद बॉडी गेट्स यूज टू दोज हॉर्मोन्स, जैसे ही वो स्टॉप करते हैं दे आर बैक टू देयर नॉर्मल प्रॉब्लम ऑफ पीसीओडी। सो ओके 16 साल तक आपकी पिट्यूटरी और आपकी ओवरीज का कनेक्शन बन रहा होता है। जैसे ओके हमारी 14 साल तक या 12 साल तक हाइट बढ़ रही होती है, 16 साल तक एक फीमेल की पिट्यूटरी ओवेरियन यूट्राइन एक्सेस बन रहा होता है। तो उसमें अगर साइकिल इरेगुलर भी है ना, तो जस्ट जस्ट डोंट बॉदर। अगर एक 16 साल या 18 साल के बाद आपकी साइकिल रेगुलर नहीं है, देन यू स्टार्ट टेकिंग मेडिसिन। आप उसको तब बॉदर करो क्योंकि तब आपको रिप्रोडक्टिव एज में जाने की जरूरत पड़ती है। सो राइट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू ऑल शुड नो। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। एटलीस्ट लड़कियों ने सुनना चाहिए और उनके मामी लोग ने भी कि कैसे हार्मोन्स रन होते लाइक एंड फ्रॉम आई विल रिक्वेस्ट यू 14। गाइस, बिकॉज आप भी बहुत सारे क्लाइंट्स के टच में आते हो, हम्म या लॉट ऑफ पेशेंट्स, प्लीज टेल हम्म देम, whenever they come, you hear these kinds of things, tell them not to take medicines at such an early age, because that is a ओके। long term effect for them. Yes. राइट। And I वेरी do गुड, request वेरी। all parents to talk to their children about this thing openly. In India, it is not that यस। pleasant to talk regarding all these things. See, they don't देखो really सिंपल सी discuss बात है, about it. So they should अरुण जी, सिंपल सी talk to their एक सिंपल सी बात है। आप अपने बच्चों को सिखाओगे नहीं, कोई और सिखा के चला जाएगा। सिंपल सी बात। यू आर राइट। अगर मैं अपने बच्चों को नहीं कुछ ज्ञान दूं, तो कोई दूसरा पेल के जाएगा और ऐसा ज्ञान पेलेगा जो हाँ। शायद मैं पसंद ना करूं। exactly. यस, क्योंकि यू आर मेरे राइट, बच्चे को राइट। मैं घर पे 24 घंटे रख नहीं सकती हूँ। अगर हम्म मैं, जो भी पेरेंट्स है, अगर हम अपने बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, सही वाला ज्ञान दे रहे हैं, तो उसमें शर्माने की बात नहीं है। क्योंकि राइट। मैं नहीं चाहती कि वो कल बाहर जाए और 4 गलत लोगों से 4 गलत ज्ञान लेके उसको सही लेके। समझे, क्योंकि उसकी माँ कहीं ना कहीं कम पड़ गई उनको सही ज्ञान देने के लिए। तो यू शुड ओपनली टॉक अबाउट दीज टू योर किड्स, बिकॉज जो उनके लिए सही है, जो उनके लिए सही नहीं है वो सही नहीं है, और हमसे ज्यादा एक पेरेंट्स होने से ज्यादा उनको कोई और ये नहीं समझा पाएगा। राइट, सो राइट, राइट, इट इज राइट। ऑलवेज राइट टू बी ओपन टू योर फ्रेंड्स, टू बी ओपन टू योर रिलेटिव्स, टू बी ओपन टू योर फैमिली, whosoever it is. गुड, 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 गुड। सो मैं यही चाहूंगा कि जैसे डॉक्टर माया है, जो इंस्पिरेशनल मैसेज दिया हुआ है लोगों को अबाउट पीसीओडी एंड अबाउट बॉडी बिल्डिंग एंड ऑल, तो आपका मैं डेफिनेटली स्टोरीज पे डालने वाला हूँ आपके जो क्या प्रोफाइल, सो दैट पीपल कम टू नो अबाउट कि कैसे किया जाता है। बिकॉज इंडिया में यही चल रहा है, जैसे आपने अभी बताया है, मैक्सिमम लोग जो है दे आर इलिटरेट बेसिकली। आई थिंक ट्रेनर्स भी दे आर 10th पास और 12th पास एंड दे डिडंट नो अबाउट एनीथिंग, कुछ भी नहीं पता। लेकिन बट दे आर स्टिल गिविंग स्टेरॉइड्स एंड ऑल कि हाँ अच्छे फिजिक बननी चाहिए, क्योंकि गधे को भी अगर हम स्टेरॉइड्स दे तो वो भी मस्कुलर बनने वाला है। तो वो नहीं समझते। तो ऐसे ही मैं चाहता हूं कि जो आज आपने जो मैसेज दिया सब सुन रहे हैं, एंड आई थिंक सारों को मैसेज मिल ही गया होगा कि कैसे बॉडी बिल्डिंग क्या है, कैसे न्यूट्रिशन होता है, एंड अबाउट एक्सरसाइज ऑल्सो। और पीसीओडी का तो मुझे काफी मैसेजेस आए थे, कल से ही आने शुरू हुए थे कि डॉक्टर से पूछना, तो आपने सारी चीजें क्लियर कर ही दी है। सो Yeah. वेरी गुड। और नवीन जी, आपको So, कुछ बात करनी है one more डॉक्टर माया point. से? Sorry, It is. one more point. या। नॉर्मली क्या होता है, जब आपकी साइकिल बन रही होती है फीमेल्स के लिए, पीसीओडी के रिलेटेड मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगी। या जब टेल मी। आपकी साइकिल, जब आपकी मेंसेस आने वाली होती है, उसके पहले जब आप
10th डे से पहले तक, जैसे आपके मेंसेस आज आई है, आज सेकंड डे, वैसे हम्म लेके 10th डे तक या 8th डे तक, हम्म उसके बीच में आप जब भी सोनोग्राफी करोगे ना, आपकी रिपोर्ट्स में पीसीओडी ही आएगा, क्योंकि आपकी ओवरीज बनी नहीं ओह है, आपके एग्स बने नहीं है, आपके एग्स छोटे ओके छोटे ही रहते हैं। तो जब सोनोलॉजिस्ट देखता है, आपके पीरियड्स आने के 2 दिन के बाद से लेके 8वें दिन तक या 10वें दिन तक फॉलिकल नहीं बनता है, तो वो छोटे ओके छोटे फॉलिकल्स ही दिखेंगे आपको सोनोग्राफी में, तो आपका ओके सोनोलॉजिस्ट उसको पीसीओडी ही बोलेगा। तो जब आप ओके पीसीओडी देखते हो, तो सबसे पहले क्वेश्चन होना चाहिए कि पीरियड्स आने के बाद की रिपोर्ट है या पीरियड्स आने के पहले की रिपोर्ट है, क्योंकि ओके हमारे यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर्स को ही नहीं दिखाया जाता है, एलियोपैथ्स को भी दिखाया जाता है, आयुर्वेद्स को भी दिखाया जाता है, और बीडीएस, हर तरीके डॉक्टर को एक रिपोर्ट्स दिखाई जाती है। जैसे गल्लो गली में आप जाओगे, कहीं पे भी छोटे छोटे गांव होते हैं, वहां पे कोई भी डॉक्टर को दिखाया जाता है रिपोर्ट्स। सो यहाँ पे हम्म क्या हो जाता है, सोनोलॉजिस्ट अपनी रिपोर्ट दे देता है पीसीओडी है, क्योंकि फॉलिकल बनी ही नहीं है, तो वो भी बंदा कुछ नहीं करेगा, वो पीसीओडी ही बताएगा। सामने वाला ओके बंदा पेशेंट आपको डरा देगा कि भाई नहीं, आपको तो पीसीओडी बोला है डॉक्टर ने, अभी आपको दवाई लेनी पड़ेगी लाइफ लॉन्ग। सो सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है, जो भी लड़कियों को पीसीओडी की प्रॉब्लम्स है, सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि आप अपने डे 2 से लेके 8th डे के बीच में अपने सोनोलॉजिस्ट के पास तो नहीं गए हो देखने के लिए कि यार मेरे को पेट में दर्द था या फिर मेरी हम्म इश्यूज है मेंसेस को लेके। उस दौरान ओके अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो उसमें फॉलिकल्स छोटे ही दिखेंगे, आपका लेडियोलॉजिस्ट उसको पीसीओडी ही बताएगा। सो टेक केयर ओके ऑफ दैट। या ओके ओके There is one question from Dr. Amita. She is asking, she has asked it many times. What is your fitness specialty? Is there any fitness specialty of yours? फिटनेस स्पेशलिटी, ओके, आई एम एक्चुअली नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट ही मीन्स टू आस्क मी। Even I'm not getting it, but she has asked us many a times, and that's why I just asked you the question. I have no mantra, I have no specialization. Only I know it to work up 2 hours and come back and have my 5 meals a day. That's it. ओके सबसे डिफिकल्ट जर्नी जो भी बॉडी बिल्डर्स बनने वाले हैं, सबसे डिफिकल्ट जर्नी स्टेरॉइड्स लेना नहीं है, उसके साइड इफेक्ट्स लेना नहीं है। सबसे बड़ी जर्नी है कंट्रोल योर माउथ। जब आपके सामने सारी पेस्ट्रीज होती है, चॉकलेट होती है, यू हैव फैंसी फूड्स अराउंड एंड यू कंट्रोल योर माउथ टू नॉट हैव दोज अनहेल्दी फूड्स, दैट इज No. द बिगेस्ट अचीवमेंट यू कैन हैव एज अ बॉडी बिल्डर। भाई आप लाखों की स्टेरॉइड्स ले लो और आप जाके वहां पे, जैसे मैं देखती हूँ कि ड्रिंक्स कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं और पोस्ट कर रहे हैं संडे वाइब्स, सैटरडे वाइब्स एंड ऑल दैट, इससे बॉडी नहीं बनने वाली है। भाई मेरे पास भी लाखों रुपए पड़े, बट मेरी बॉडी नहीं बन रही है एंड्रॉ की वजह से, मेरी बॉडी नहीं बन रही राइट है बिकॉज राइट इससे राइट नहीं बन। राइट 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 मैं तो कह ही रही हूँ कि मैं लोन भी ले लूंगी 40 लाख की, अगर ऐसे स्टेरॉइड लगाने से बॉडी बन रही है। मैं तो ऑस्ट्रेलिया में हूँ भाई, मैं तो सबसे डेवलप कंट्री में हूँ। अगर ऐसे होता तो आज हम्म मैं भी ओलंपिया जाके पता नहीं स्टैंडिंग ग्रैंड के साथ खड़ी होती, बट ऐसा नहीं होता। इट डजंट वर्क। राइट So you Right. have to accept and do hard work. Do your workout, यस do your diet. That is important. सो आई थिंक सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमने दे दिए वेरी गुड सो आई थिंक वी डोंट हैव एनी क्वेश्चन राइट नाउ लेट मी चेक डॉक्टर अमित उनका एक क्वेश्चन है वाई एक ही क्वेश्चन है वाई कांट वी जस्ट डू कार्डियो इंस्टेड ऑफ ट्रेनिंग आई डोंट Yes. नो Very वो था good इक्वली question. इम्पोर्टेंट लेकिन या आंसर्स गिव आंसर Yes. Very good important question because Indian females को कार्डियो करने की आदत है, वर्कआउट करने की आदत ही नहीं है। मैंने देखा है, लड़कियों का सेक्शन अलग होता है, लड़कों का सेक्शन अलग होता है Right. राइट ना। सारे कार्डियो के सेक्शन में लड़कियां होती है और सारे वेट ट्रेनिंग्स के पास लड़के होते हैं, और लड़के एक होते लड़की हैं अगर वेट ट्रेनिंग पे आ गई तो सब लोग उसको ऐसे देखते हैं कि भाई इसको क्या प्रॉब्लम है, यहाँ क्यों आ गई है। और एक लड़का अगर कार्डियो सेक्शन में चला गया तो सारी लड़कियां ये बोलती है यार ये लड़कियों के बीच में क्यों आ गया। क्यों आ गया सो लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन नाउ। आप जब कार्डियो करते हो तो आप फैट बर्न कर रहे होते हो, लेकिन सिर्फ फैट बर्न करने से बॉडी परफेक्ट नहीं होती। आपको आपके मसल्स टोन रखने होते हैं, आपको आपके मसल्स को एक्सरसाइज देनी होती है। आपको हर बार यू नीड टू मेक योर मसल स्ट्रॉन्ग। क्या होती है, एक मिथ होती यस है कि शेक्स होते हैं,
फैट लॉस शेक्स, फैट लॉस टैबलेट्स, फैट लॉस ड्रिंक, Mm-hmm. ये ले लो। और उसके बाद क्या होता है, उनके मसल्स वीक हो जाते हैं बिकॉज लॉन्ग ड्यूरेशन से वो कोई वर्कआउट नहीं कर रहे होते। और फिर बाद में व्हेन दे लूज ऑल देयर फैट, उनके मसल्स बहुत वीक रहते हैं। एंड देन दे स्टार्ट, ये प्रॉब्लम चालू हो जाती है कि मेरे को बैक एक हो रही है, मेरे को मसल पेन हो रहा है, मेरे को ब्रेथलेसनेस हो रहा है, मैं थोड़ा भी भाग रही हूँ तो मुझे ये तकलीफ हो रही है। सो इसकी वजह से ये होता है कि ये मिथ जो होती है कि लड़कियों को सिर्फ कार्डियो करना होता है। कार्डियो नहीं, कार्डियो इज अ पार्ट ऑफ योर फिटनेस जर्नी, बट ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट टू मेंटेन योर मसल्स। आप उसे स्किप नहीं कर सकते हो। अगर आपको एक अच्छी फिगर चाहिए, एक अच्छा अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर चाहिए, यू हैव टू डू। और ऐसा नहीं है, लेट मी टेक यू वेरी क्लियरली, वेट ट्रेनिंग से जितना फैट बर्न होता है उतना कार्डियो से बर्न नहीं होता है। सो सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो लड़कियां ये सोचती है कि वेट ट्रेनिंग क्यों मैं करूँ, क्योंकि मेरे को तो फैट लॉस करना है। अगर आप वेट ट्रेनिंग करोगे तो आपका फैट लॉस और ज्यादा होगा। सो वेट ट्रेनिंग इज इक्वली इम्पोर्टेंट लाइक अ कार्डियो। राइट राइट राइट। दे एक्चुअली कैसे होता है, लड़कियां डरती है कि वेट ट्रेनिंग करूंगी तो लड़कों के जैसे मसल्स बनेंगे, ये वो काफी इंडिया में ये सारे मिथ्स चल रहे हैं। तो उन्हें लगता है कि मैं वेट ट्रेनिंग करूंगी तो डेफिनेटली मैं लड़कों की जैसे दिखूंगी, बट इट्स रॉन्ग। नो, नो, तो आई यहाँ पे लेट मी मेक यू वेरी श्योर, व्हेन वी आर डन विद द फिगर कैटेगरी, हमको हमारी फेमिनिटी के भी मार्क्स मिलते हैं। वी ओके। उनको हमारे लड़की दिखने के भी मार्क्स देने पड़ते हैं। जैसे हमारे एब्स को मार्क्स हम्म। होते हैं, हमारे पोस्चर्स को मार्क्स होते हैं, हमारे फेमिनाइन लुक्स को भी मार्क्स होते हैं। मार्क्स होते तो हैं। गरीबी, हाँ, और मैं तो 10 साल से कर रही हूँ, बट आई डोंट लुक लाइक अ मैन, आई गेट अ पॉइंट फॉर माय फेमिनिटी। नाउ द ओके। प्रॉब्लम इज, हम वेट लेने से लड़कों जैसे नहीं दिखते हैं, हम स्टेरॉइड लेने से लड़कों जैसे यस, दिखेंगे। राइट राइट, यू एब्सोल्युटली ठीक है, राइट। तो जो लड़कियां वेट ट्रेनिंग करती है, ओके, कैटरीना कैफ से लेके आलिया भट्ट से लेके ऑल फैंसी हीरोइंस विच यू ऑल फॉलो, सारे वेट ट्रेनिंग्स करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इनको अगर हजारों लोग फॉलो कर रहे हैं तो ये लड़कों जैसे दिख रही है। सो सबसे पहले ये हम्म। दिमाग में से निकाल दो एंड डू योर वर्क ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, स्टार्ट विथ योर वर्क ट्रेनिंग विथ योर whoever your trainers are। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि वेट ट्रेनिंग करने से आप लड़कों जैसे दिखना शुरू कर दो। इट इज हम्म। एब्सोल्युटली बिग बिग मिथ। राइट 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 राइट। सो आई थिंक सारे क्वेश्चंस वी डन विथ ऑल क्वेश्चंस, और सब Yeah, लोग I ने could रियली really लिखा। admire you, Dr. Maya Johar. Please, thank you so much for that. या बिकॉज Thank you काफी for लोग ने something. लाइक दे ऑल आर सेइंग थैंक्स टू यू, बिकॉज आपने काफी अच्छे आंसर्स दिए। वेरी भाई गुड। ज्ञान सो बांटने से बढ़ता है। या शेयर करना जरूरी है। Even नवीन we जी। are in this I session, will we are learning a soon, lot. I will soon share one thing। मुझे काफी लोगों ने हाँ पूछा है कि यहाँ पे वाटर लॉस कैसा होता है, बिकॉज यहाँ पे ना जो पेपर थिंग वाटर लॉस होता है एंड हाँ कंपेयर टू इंडिया, मुझे काफी लोगों ने पूछा कि हाउ दे गेट देयर पेपर थिन स्किन बिफोर देयर कंपटीशन। I would really हाँ। soon share this kind of thing because how much water should be during the workout. Okay, can I answer this, Kamli Sagun? Yeah, yes, yes, Kamli Sagun. या yes, yes. श्योर श्योर। Much Yeah, water. या व्हाट शुड बी डूइंग, या Yeah. I'll tell you why. Because जब मैं initially train कर रही थी ना, तो हाँ there was one trainer who used to always tell me, पानी मत पियो, abs workout करना है, पानी मत पियो, abs workout करना है। I have met one trainer like this. So जब आप ओके। वर्कआउट कर रहे होते हो तो आपकी कैलोरीज बंद हो रही होती है, आप डिहाइड्रेट होते रहते हो, तो आपको कंटिन्यूस पानी पीना चाहिए। So you should drink ये water when you're doing your workout. Okay. हम्म। So soon I will share you certain tips of how we do our pre-competition prep. जब मेरे
100%, you wouldn't have been in the journey. So that's only I can say. And for this reason, I have to do it. And I wish you all the best for your contest. And on behalf of India, I give you all the regards for your competition. And I want to see you winning in that stage so that even we can say everyone, yeah, she's Maya. Yeah, we all know her. It's like it's like a proud moment for us, and still we are proud of you that you are representing India in such a big stage. Yes. Thank you so much for that. You know, So we'll I make. was when I came here, Yes. I'll share you a short story. When I came here, मैं जब यहाँ पे आई ऑस्ट्रेलिया, मेरा कोई इरादा नहीं था कंपटीशन करने का. Hmm. बट जैसे जैसे मैं लोगों से मिलने लगी, मुझे पता चला कि ऑस्ट्रेलिया में आज तक किसी भी इंडियन लड़के ने कंपटीशन नहीं खेला. ना वाज लाइक क्यों, यहाँ कैसे हम पीछे पड़ गए. एंड आई वाज लाइक यहाँ तो हम चढ़ के जाएंगे. आए हैं तो चढ़ के Yes. जाएंगे. Well, And good. Right. that was Right. the only Very thing good. which motivated me. So don't worry, I will definitely, मैं बहुत जल्दी यहाँ पे बहुत इंडियंस देखना चाहूंगी. Sure. So And so Maya is having very good knowledge about fitness industry regarding fitness, regarding bodybuilding. And yeah, she is a doctor. तो उन्होंने जो बताया एकदम सही बताया गायना के बारे में कि आप ये एक्सरसाइज डाइट से ही ज्यादा सही हो सकता है. तो I would suggest all the female to follow what she you advised. know, I'll tell you about my knowledge. I am not a knowledgeable person as much, but I'll tell you it's a dream work. मैं आज तक जितने भी लोगों के कांटेक्ट में आई हूँ, एक कुछ ना कुछ सबसे सीखा है. Like Hmm. Very everybody good. has taught me. I will never take a credit कि मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ. मुझे बहुत सारे लोगों ने when I went to Bombay, there was Shrikant who gave me a lot of knowledge of bodybuilding. Vipin sir shared all his secrets of his knowledge. Sham sir, everybody was there to help me. When I was in Bharuch, Sai Nair, he used to push me to go for gym. ऐसा कभी होता था ना कि I'm really tired. He used to tell me. So, और her mama used to make my meal because कभी कभी ऐसा हो जाता था कि I had a camp, I'm from my surgeries back and I'm really tired. Mother Okay. used to cook my meals and give me. So it's a very big journey जहाँ पे भी हमारे लाइफ में हर कोई आता है और एक पार्ट प्ले करके जाता है ताकि आप कोई कहीं तक पहुंचो. Like here I have some friends like yeah, I have couple of friends like Sakshi, Amit Sharma, like Utkarsh, Meenal and all. They push me to go beyond my limits and do it. They keep on motivating me. So it's not all me who हर कोई सपना देखता है, but you need all those people to be positive towards you. Like I get so much of Facebook messages, Insta messages. They keep on motivating. हम visually मैं किसी से नहीं मिली, मैं Okay. किसी से भी नहीं मिली हूँ, but these people are a part of my journey जो मुझे इतना मोटिवेट करते हैं यहाँ तक आने के लिए. So thank you to Good. all you guys. You all notice us, you all come to us to let us know that yes, we are doing something for you guys, and that's what motivating to us. So I'm really मेरा grateful क्योंकि कुछ नहीं है, मेरा बहुत सारे लोगों का मिलके है जो जिन्होंने मुझे दिया है. अगेन इट्स अ So पार्ट ऑफ टीम वर्क. जब तक सबसे मिलोगे नहीं, यू विल नॉट कम टू नो अबाउट अभी इस इंडस्ट्री के बारे में अपने इतना सारी चीजें बताई है. आई थिंक मुझे नहीं पता कि किसी फीमेल को इतना पता होगा, बिकॉज अगेन यू आर डॉक्टर. एंड सेकेंड थिंग ये जो अपने बेसिकली मुझे तो सबसे अच्छा लगा जो एनओआर के बारे में अपने जो बात की है, क्योंकि मैंने काफी मेरे दोस्त है, दे आर फीमेल बॉडी बिल्डर, दे आर डूइंग बिकनी एंड और शेरू क्लासिक के लिए बहुत खेलते हैं. they like whole like here they are having something, I don't know what they are having, लेकिन खाते रहते कुछ ना कुछ. जब भी बैग खोलूं तो कुछ ना कुछ ऐसे मिलेगा मुझे जो मुझे खुद भी नहीं पता. सो वेरी गुड एंड आई एम रियली हैप्पी कि so आपने next time ये सारी आप चीज. जब किसी के बैग पे ऐसे देखो तो ये पूछ लेना कि एक डॉक्टर ने ऑस्ट्रेलिया से पूछा था कि आपको ये दवाइयां जरूरी है, आपको अपनी इनफर्टिलिटी जरूरी है. So राइट, you मैं make a पूछूंगा choice. डेफिनेटली, क्योंकि ये सब चीजें जरूरी है. अदरवाइज किसी को मतलब ये सारी चीजें दिल्ली में ज्यादा चलती है बिकॉज दे डोंट हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट स्टेरॉइड्स. आई नो दैट बिकॉज Yeah. काफी लोगों I से मैं have मिला really हूँ, no दे आर idea about जस्ट that. गिविंग. हाँ, Yeah. या दे I आर have जस्ट really गिविंग no ब्लाइंडली. idea. हाँ, तो दैट्स व्हाई. सो इट्स गुड जो भी आपने बताया. और एक वीडियो में और बनाना चाहूंगा आपके साथ, बट गिव मी सम टाइम ताकि मैं अच्छे कुछ टॉपिक्स ले आऊं ताकि लोगों तक जाए ये मैसेज. बिकॉज मुझे पता है आज जो आपने बताया काफी फीमेल जो बॉडी बिल्डर्स उनके मैसेजेस मुझे आएंगे एंड दे विल स्टॉप टेकिंग स्टेरॉइड्स एंड ऑल.
थैंक यू वेरी मच कि आपने ये That will सारी be चीजें great बताया. enough. If they do that, Yeah. any single lady stops doing that, that will be great enough for us to have this session. Yeah, yeah, right. So ये सेशन हम इधर ही अभी फिनिश करते हैं बिकॉज मेरा एक नेक्स्ट ये है विद क्लाइंट, सो Yeah. है ना. एंड थैंक यू All सो good. मच Thank you so मैडम. much. We are here to help you out, guys. Anytime you are थैंक यू. anything, let us know. Yes, I won't. I am really not bluffing, but I don't get time to be online every time to message. But whenever I read, I get a time. I am sitting idly. I do reply to my all of these people. But any ओके. queries are most welcome. I will not say कि हाँ मैंने पढ़ लिया है, but then I will not reply to it. As soon as I get time, I do reply them because जैसे श्योर मैंने श्योर बोला श्योर. ज्ञान रहता है तो बढ़ता है. I have no problem in sharing my knowledges with you guys. एंड आई पुट Thank योर you so प्रोफाइल much ऑन for माई स्टोरीज having me. बिकॉज लोगों को पता चलने दो और आपसे मिलने दो ताकि दे विल कम टू नो अबाउट ऑल दिस थिंग. तो काफी अच्छा होगा. थैंक यू Thank सो you so much. मच. I hope I give my 100% to you guys. You are यस happy with यस what यस has been testified to for यस your यस. questions. Thank you. Thank रियली थैंक यू. you, Dr. बाय. Maya. Yes. Tanushree. थैंक या थैंक यू. Yes. Bye. Take care. बाय. Yeah. टेक केयर मैडम. बाय बाय.